awesome है. So guys, ठीक है. So hi everyone. I think मतलब what we will do is कि how we will kick this session off is that we will start off with the previous question that we were discussing in the last session. ठीक है. Last session में हम एक question discuss कर रहे थे which was I believe capitalize का एक question discuss कर रहे थे. ठीक है. Capitalize first इस type का कुछ question हम discuss कर रहे थे. ठीक है. What was the question? ठीक है. The question was कि भाई ऐसा है कि आपको array दिया हुआ है. ठीक है. Let's say you are given an array of containing multiple elements A, B, C. ठीक है. Comma P, Q, R. Comma. Zoom in a bit. Comma. Let's say कि भाई P, Q, R. Comma X, Y, Z. Comma. You are given another. Let's say. Something else. ठीक है. J, K, L. Something like this. ठीक है. What would the result of capitalization look like? What you have to produce is you have to get to this point. You have to get to this point where you have all these elements inside the array. Exactly the same elements, but the first letter is capitalized. The first letter is capitalized. Something like this. ठीक है. ये आपको return करना होगा. This is what you have to write a program to be able to return something like this. ठीक है. तो हम कैसे करेंगे? हमने डिस्कस करा था कि भाई कैसे करेंगे. I hope you have attempted it also. ठीक है. What we will be doing is we will be pulling out the first element, that is ABC, and इसको हम अलग से capitalize करेंगे. At every point we will capitalize this. Let's say कि भाई we have to write a function on top of this. इस function नाम लिख देते हैं cap नाम दे देते हैं. ठीक है. Capitalize कुछ ऐसे कुछ नाम देते हैं. Capitalize first letter करना है केवल आपको लिखना. ठीक है. So what we will do is we will pull out the first element. ठीक है. And we will capitalize the first character in that element. ठीक है. And we will push it inside an array. ठीक है. And what we will do is we will concat it with the result of capitalized function. ठीक है. Result of the capitalized function on the remaining elements. ठीक है. यानी इसको हम concat करेंगे किससे? Remaining elements के को capitalize first करने से जो result आएगा. ठीक है. इन remaining elements को capitalize first करने से result क्या आएगा? ठीक है. तो एक बार वो भी देख लेते हैं. ठीक है. यहाँ से क्या result आएगा? ठीक है. तो यहाँ से क्या result आएगा? तो भाई इन remaining elements को capitalize function जब call करेंगे तो ये क्या result देगा? This will give us first element को निकालेगा, यानी PQR को निकालेगा, इसका P कैपिटल कर देगा. ठीक है. And it will concat it with capitalized function का application on the remaining elements, बचे हुए elements. ठीक है. बचे हुए elements कैसे capitalize होंगे? ठीक है. बचे हुए elements ऐसे capitalize होंगे. ठीक है. इनमें से फर्स्ट वाला एलिमेंट निकल जाएगा आपका. ठीक है. फर्स्ट वाला एलिमेंट निकल जाएगा. ठीक है. एक एरे में पुश हो जाएगा. फर्स्ट वाला एलिमेंट निकल के एक एरे में पुश हो जाएगा. ठीक है. with x capital. ठीक है. And this will get concated with ठीक है. concat with capitalized function कॉल होगा remaining elements में. और जैसे ही आपका एलिमेंट केवल एक बचता है, you only have one element left जिस पे capitalized function कॉल करना है. तो what do you do? ये बेस केस बना देंगे आप, और इस बेस केस को क्या करेंगे आप? You will give out a result that looks something like this. ठीक है. अब अगर आपके पास केवल एक ही एलिमेंट बचा है, ठीक है, you got only one element to capitalize, then what you will do? You will return this, that element with the first letter capitalized. This is what you will return. ठीक है. तो ये आप करेंगे. ठीक. मोटा मोटा हमने डिस्कस करा था. ठीक है. We will write the code for this. ठीक है. Take 30 seconds to look at the logic that is written in front of you on your screen.
ठीक है, 5-10 seconds to do that. अच्छा भाई देखो guys, मैं कोड स्निपेट्स में कोड करता हूँ, आप चाहो तो VS कोड में कर लो, कहीं भी कर लो, डजंट मैटर, ठीक है। ठीक है, आई होप द लॉजिक इज क्लियर, ठीक है भाई। रिकर्शन नहीं है, सिंपल रिकर्शन है, ठीक है। एक एक करके एलिमेंट निकालेंगे, ठीक है, उसको कैपिटलाइज करेंगे, उसको कॉन्कैट करेंगे विद कैपिटलाइजेशन ऑन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। सिंपल बेसिक रिकर्शन का है। ठीक है, नाउ लेट मी राइट द फंक्शन प्रोग्राम टू डू दिस, ठीक है। हम एक बार कोड लिखते चल जाते हैं, ठीक है। फंक्शन आपने लिख लिया, ठीक है। लेट्स नेम दिस फंक्शन कैपिटलाइज fn, ठीक है, यही नाम होता है कैपिटलाइज फंक्शन, ठीक है। कैपिटलाइज फर्स्ट फंक्शन है जो भी है, ठीक है। it will take an array it will take an array as input, ठीक। and what it will do is it will say कि भाई अब फर्स्ट जो है एक एक हम array बनाएंगे जिसमें ये एलिमेंट पुश होता रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक array बना लिया, let result हम array बना देते हैं, result, ठीक है, is equal to, ठीक है, blank array बना देते हैं, ठीक है। और हम क्या करेंगे, we will say कि return what, ठीक है, return what, return what, ठीक है। तो सबसे पहले इसको कैपिटलाइज करके, फर्स्ट एलिमेंट को कैपिटलाइज करके पुश करना है इस एरे में, ठीक है ना। फर्स्ट एलिमेंट को कैपिटलाइज करके इस एरे में पुश करना है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्लियर, यू कैन हियर मी आल्सो क्लियरली, ठीक है। कूल है। सो गाइस, हाँ, सो सॉरी, सो व्हाट वी वर डूइंग इज कि भाई हम रिजल्ट एक एरे बना लिया, ठीक है। इसमें हम जो है व्हाट वी विल डू इज कि वी विल पुल आउट द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। दैट इज विल पुल आउट द फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, ठीक है। हम पहला एलिमेंट पुल आउट करेंगे, यानी हमारा जो एरे आया है ARR लिख लेते हैं इस एरे की जगह पे ARR, ठीक है। व्हाट वी विल डू इज कि ARR का फर्स्ट एलिमेंट हम पुल आउट करेंगे। फर्स्ट एलिमेंट ARR कैसे पुल आउट करते हैं, एरे 0 लिख के, ठीक है। एंड व्हाट वी विल डू इज कि वी विल कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट, ठीक है। तो ये पहला एलिमेंट आ गया हमारे, ठीक है। तो व्हाट वी हैव टू डू इज कि पुल आउट दिस एंड कैपिटलाइज फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ 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 ARR 0, ठीक है। अब ARR 0 को फर्स्ट कैरेक्टर अपने कैपिटलाइज करना है, ठीक है। कैसे करें, ठीक है। तो देखो ध्यान से मैं बता रहा हूँ कैसे करोगे, ठीक है। अब क्या करोगे, यू विल से कि लेट s is equal to, ठीक है, व्हाट ARR 0 का फर्स्ट एलिमेंट, इसका फर्स्ट एलिमेंट कैसे आएगा, इसका फर्स्ट कैरेक्टर होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट, यानी इस एरे का फर्स्ट एलिमेंट ARR 0 से मिल गया, ठीक है आपको, ठीक है, ABC मिल गया। इसका फर्स्ट कैरेक्टर एक्सेस करना है तो क्या करेंगे, इसका फर्स्ट कैरेक्टर 0th पोजीशन पे होगा, 0th पोजीशन में जो कैरेक्टर वो एक्सेस कर लिया हमने, ठीक है। और उसको हमने अपर केस करने के लिए हमने जावास्क्रिप्ट का एक इनबिल्ट फंक्शन है टू अपर केस, ये यूज कर लिया, ठीक है। दैट्स इट, ठीक है। एंड व्हाट डू वी डू, इसमें हम कॉन्कैट कर देंगे, क्या इसमें हम कॉन्कैट कर देंगे द रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। यानी ARR, ठीक है, ARR 0 के में बचे हुए एलिमेंट्स कौन से हैं, इसमें जी कितने एलिमेंट्स बचे हुए, ठीक है। यानी व्हाट वी हैव टू डू इसकी हमने क्या करा बेसिकली कि हमारे पास, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, हमारे पास ABC था, ठीक है। हमने क्या करा, हमने
इसको में से फर्स्ट कैरेक्टर को निकाला है ए को और उसको कैपिटलाइज कर लिया है, टू अपर केस कर लिया, ठीक है। और इसमें हमें कॉन्कैट करना है, कॉन्कैट क्या करना है, इसमें हमें कॉन्कैट करना है बचे हुए दो कैरेक्टर्स यानी बीसी का कॉन्कैट करना है, ठीक है। तो बचे हुए दोनों कैरेक्टर्स कैसे निकालते हैं, तो हम स्लाइस फंक्शन कल भी हम लोग देखे थे कि फर्स्ट एलिमेंट को स्लाइस कर लो, यानी एबीसी में से फर्स्ट एलिमेंट स्लाइस कर लिया, क्या बचा, बीसी बच गया, ठीक है। बीसी को इसमें हमने कॉन्कैट कर लिया। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग हियर इफेक्टिवली, ठीक, ये हो गया, ठीक। यानी व्हाट वी हैव नाउ राइट नाउ इज वी हैव A, B, C with us right now, ठीक है। Now what we will do is कि we will just say s dot sorry रिजल्ट में भाई पुश कर दो इस एलिमेंट को, रिजल्ट डॉट पुश, ठीक है, which element into the array, ठीक है, will push the ये s into this array, ठीक है, ये हमने पुश कर दिया, ठीक है। रिजल्ट में हमारे पास इफेक्टिवली क्या हो गया, मतलब रिजल्ट has become something like this, ये बन गया रिजल्ट, ठीक है, इसमें ये पुश हो गया, ठीक है। And what we do is कि भाई रिजल्ट तो हमने पुश तो कर दिया, ठीक है, यानी रिजल्ट इज दिस राइट नाउ, ठीक है। व्हाट वी डू इज कि अब रिटर्न क्या करना है अपने को, ध्यान होगा तो आपको, रिटर्न क्या करना है, ये एरे बना के इसको इसमें कॉन्कैट कर देना है रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स का कैपिटलाइजेशन, ठीक है। तो वी विल से कि रिटर्न क्या करना है अपने को, रिटर्न करना है रिजल्ट डॉट कॉन्कैट, ठीक है, रिजल्ट डॉट कॉन्कैट, सेम फंक्शन इसको कॉल करना है, कैपिटलाइज फंक्शन कॉल करना है रिमेनिंग एलिमेंट्स पे। रिमेनिंग एलिमेंट्स कौन से हैं भाई, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं, तो ARR में से फर्स्ट एलिमेंट को उड़ाना है, ठीक है, यानी फर्स्ट एलिमेंट को उड़ाना है मतलब स्लाइस 1 करना है, ठीक, ये हमने कर दिया, ठीक है। दिस इज व्हाट वी हैव बीन एबल टू अचीव। अभी हमने बेस केस नहीं सेट किया है, ठीक है, बेस केस सेट करना जरूरी है। बेस केस क्या है हमारा, ठीक है, कि भाई अगर अगर एक ही एलिमेंट बचा हुआ है, ठीक है, या एक से कम एलिमेंट, जो भी बोलना आपको बेस के साथ, ठीक है, यानी व्हाट यू हैव टू डू इज कि भाई अगर एक ही एलिमेंट बचा है, ठीक है, या एक से कम एलिमेंट बचा है या जीरो एलिमेंट बचा है, ठीक है, यानी इफ, ठीक है, इफ आप ये भी कर सकते हैं ना भाई कि इसको कॉन्कैट कर लिया इससे, ठीक है, और जीरोथ एलिमेंट पे बचा है आपका, ठीक है, यानी कोई एलिमेंट नहीं बचा, यानी आपका ARR डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, अगर इतना लेंथ जीरो बचा हुआ है इसका, ठीक है, then what do you return, you return nothing but a blank array। what will happen, कैपिटलाइज फंक्शन में एक एलिमेंट बचा हुआ है तो उसको ये रिटर्न कर दिया, ठीक है, और इसको कॉन्कैट करने लग जाएगा विथ व्हाट, विथ कैपिटलाइज फंक्शन ऑन ब्लैंक एरे, ब्लैंक एरे के ऊपर, ठीक है। और ब्लैंक एरे को हमने बेस केस बना दिया है। ब्लैंक एरे के केस में हम क्या देंगे, हम क्या रिटर्न करेंगे, ब्लैंक एरे के केस में हम इसमें कैपिटलाइजेशन जब मांगता है तो हम ब्लैंक एरे ही रिटर्न करते हैं, ठीक है, दैट इज व्हाट वी रिटर्न, रिटर्न जस्ट द ब्लैंक एरे, ठीक। तो ये हमने बेस केस बना लिया। व्हाट वी कुड हैव डन इज वी कुड हैव आल्सो सेड कि भाई अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो भाई तो भाई फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर लो, हमने जीरो पे भी ले लिया, ठीक है, हमने 1 की जगह 1 को भी आप बेस केस बना सकते थे, आप जीरो को भी बेस केस बना सकते थे, यानी जब एक एलिमेंट बचा है, जब केवल एक एलिमेंट बचा है, इसको भी आप बेस केस बना सकते हैं, या जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचा है इसको भी आप बेस केस बना सकते हैं। इन दोनों में से किसी को भी आप बेस केस बना सकते थे। लेट्स कॉल दिस फंक्शन and this is the result that we get, ठीक है। something like this also, बड़ा छोटा भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। एक बार देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, ठीक है, and I will discuss it in another 1 minute। एक बार देखिए इसे क्या लिखा हुआ है, but I hope you will all able to solve this by your own also।
जो मैं रन करके दिखा दे रहा हूँ, ये दिख रहा है जैसे। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ क्या कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एक बार बहुत क्विकली गो थ्रू दिस। ठीक है, मैं इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा। इस चीज़ के लिए। ठीक है, so what we have done here is that ठीक है, what we have done here, अगर आपको दिख रहा है तो, कि भाई हमने लिया एक, so we took a यहाँ पे देखोगे तो ये हमारे पास एरे आया है। ठीक है, what we have managed to do, ये हमारे पास array of objects आया। ठीक है, what we have done here is that we have said कि भाई सॉरी, ठीक है, ये हमारे पास एक array of strings आया है। what we had to do is कि हर string हमें रिजल्ट में हर string का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटलाइज चाहिए था। तो what we did इसकी हमने एक ब्लैंक array बनाया, उसमें फर्स्ट कैरेक्टर को पुश किया, फर्स्ट को, इसको हमने प्रोसेस किया। कैसे प्रोसेस किया? सिंपल रिकर्शन की तरह ही काम कर रहे हैं। ठीक है, कि फर्स्ट एलिमेंट उठाया, उसको प्रोसेस क्या किया, उसमें से फर्स्ट लेटर उसका कैपिटल कर दिया। ठीक है, उसको पुश कर दिया इस ब्लैंक एरे में। ठीक है, और हमने क्या करा, पुश कर दिया ये ब्लैंक एरे में। ठीक है, फिर हमने क्या किया, हमने इसको मर्ज कर दिया विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स का कैपिटलाइजेशन, यानी रिमेनिंग एलिमेंट्स पे सेम प्रोसेस करके। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, हमने उसके बाद कॉन्कैट कर दिया, व्हिच इज व्हाट वी हैव डन। वी हैव टेकन फर्स्ट एलिमेंट को हमने पुश कर दिया, ये बना लिया हमने। ठीक है, एंड देन व्हाट वी डिड इज वी विल कॉन्कैट इट विद द कैपिटलाइजेशन ऑन द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स के लिए हमने क्या किया, एरे डॉट स्लाइस 1 किया हमने। ठीक, फर्स्ट प्रेजेंट एलिमेंट को प्रोसेस कहाँ किया है, यहाँ पे प्रोसेस किया है। ठीक है, कैसे प्रोसेस किया है, तो प्रेजेंट एलिमेंट यानी एरे 0, फर्स्ट एलिमेंट यानी एरे 0। ठीक है, उसका फर्स्ट कैरेक्टर यानी एक और 0 डॉट, उसको अपर केस में डाल दिया और उसको मर्ज कर दिया किसके साथ, उसके रिमेनिंग कैरेक्टर्स का, यानी फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट कैरेक्टर को छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ इसका मर्ज कर लिया। सो व्हाट वी हैव डन इज कि एबीसी में से ए को निकाला, इसको कैपिटलाइज किया, ये रहा। ठीक है, उसको मर्ज कर दिया बीसी के साथ। ठीक है, तो व्हाट वी गॉट वाज एबीसी। ठीक है, यही करा है। फर्स्ट एलिमेंट का फर्स्ट कैरेक्टर उसको अपर केस किया, उसको मर्ज किया फर्स्ट एलिमेंट के फर्स्ट कैरेक्टर छोड़ के बाकी सारे कैरेक्टर्स के साथ। ठीक, और उसको हमने पुश कर लिया इस एरे के अंदर। ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक, सिमिलरली पीक्यूआर को जब प्रोसेस करना होगा तो कैसे प्रोसेस होगा? ठीक है, एक बार अनडू कर देता हूँ ये सारी राइटिंग्स। जब पीक्यूआर को प्रोसेस करना हो तो कैसे प्रोसेस होगा? ठीक है, उसका भी फर्स्ट एलिमेंट निकाल लिया जाएगा। सॉरी, ये रिमेनिंग एरे को प्रोसेस करना हो तो कैसे प्रोसेस होगा? तो पीक्यूआर को निकाल लिया जाएगा, उसके पी को कैपिटलाइज करके उसको एक एरे में पुश कर दिया जाएगा। ठीक, और उसको कॉन्कैट करेंगे विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स का कैपिटलाइजेशन।
रिमेनिंग एलिमेंट्स के लिए क्या होगा, एक्स वाई जेड को निकालेंगे, उसको कॉन्कैट करेंगे विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स का कैपिटलाइजेशन। फिर रिमेनिंग एलिमेंट्स के कैपिटलाइजेशन क्या होगा, जे के एल को निकालेंगे, उसको फर्स्ट कैरेक्टर को कैपिटल करेंगे और उसको कॉन्कैट करेंगे विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स। रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने बचे हैं, जीरो, कोई एलिमेंट ही नहीं बचा है। तो कोई एलिमेंट नहीं बचा है तो उसका रिजल्ट क्या है, ये बेस केस है हमारा, दिस इज द बेस केस, ठीक है। व्हेन देयर इज नो एलिमेंट लेफ्ट, दिस इज द बेस केस व्हिच वेयर वी से कि भाई array डॉट लेंथ जब जीरो हो तो ब्लैंक एलिमेंट, ब्लैंक एरे रिटर्न कर देना। ब्लैंक एरे को कॉन्कैट करो किसी भी चीज के साथ तो फर्क नहीं पड़ता, वो ब्लैंक ही रह जाता है, ठीक। ठीक है। यस, सो आई बिलीव, मतलब यहाँ पे एक अगर आपको डाउट आ रहा है कि भाई रिजल्ट आ रहा है तो ब्लैंक है, तो इसमें कॉन्कैट क्या हो रहा है, तो भाई रिजल्ट आ रहा है ब्लैंक था, उसमें हमने पुश किया है एक एलिमेंट, यानी नाउ इट बिकम्स दिस, ठीक है। उसमें कॉन्कैट होगा द रिमेनिंग एलिमेंट्स का, रिमेनिंग एलिमेंट्स का भाई कैपिटलाइजेशन का रिजल्ट, ठीक है, उसमें कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है। दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। कूल है, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई विल गिव यू, मतलब इफ यू हैव एनीथिंग टू टेक, कोई नोट्स आपको लेने हैं, कुछ लेने हैं आपको, तो यू हैव गॉट से 5-10 seconds, ठीक है, एंड यू विल मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। आई विल डू अ थिंग, मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। Because मतलब this is a tricky problem and why I'm explaining this again, you can expect this in your interviews, ठीक है। आप अपने इंटरव्यूज में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है, इसको। तो मैं दोबारा से नीचे नीचे इस वाली चीज को मैं करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो what we are doing here is that and how this will look like is कि भाई यहाँ पे एक, ठीक है, कि यहाँ पे एक इस एरे का रिजल्ट क्या आएगा, ठीक है। टेक अ लुक एट दिस, ठीक है। तो आई कीप राइटिंग, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एरे में से पहला एलिमेंट निकालेंगे, फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे और उसको प्रोसेस कर देंगे। फर्स्ट एलिमेंट निकालेंगे, उसको कैसे प्रोसेस करेंगे, उसको प्रोसेस करके ये बन जाएगा ए बी सी बन जाएगा, ठीक है। एंड इसको बोलेंगे वी विल कॉन्कैट, ठीक है, यानी सी लिख देता हूँ मैं कॉन्कैट की जगह, ठीक है, विथ द प्रोसेसिंग ऑफ द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स, ठीक है, यानी पी क्यू आर, ठीक है, कॉमा एक्स वाई जेड, कॉमा जे के एल, इनके प्रोसेसिंग पे, ठीक है, यानी इनको
कैपिटलाइज करना पड़ेगा अभी अपने को, ठीक, विल हैव टू कैपिटलाइज देम, इसको प्रोसेस करेंगे, और इसके साथ ये कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है, इसके साथ मर्ज करना है इसको, ठीक है, मैं प्लस लिख देता हूँ मर्ज की जगह, कॉन्कैट की जगह कीप राइटिंग प्लस, ठीक, तो ये हो गया, ठीक है, यानी ये एरे आ गया, ये एरे अभी में केवल एक एलिमेंट है, यहाँ से जो एरे आएगा उसके साथ मर्ज होकर फाइनल रिजल्ट बन जाएगा, ठीक। अब इस एरे का रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है, इस एरे का रिजल्ट देख लेते हैं, इस एरे का रिजल्ट क्या है, इस एरे का रिजल्ट है एक ब्लैंक एरे से चालू हुआ होगा, ठीक है, दिस वुड हैव अगेन स्टार्टेड विद अ ब्लैंक एरे, ठीक है, इसमें पी क्यू आर पुश हुआ होगा, ठीक है, इसका रिजल्ट क्या होगा, इसमें एक और चीज ऐड होगी, ठीक है, विच इज की भाई कैपिटलाइजेशन ऑफ व्हाट, ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या है हमारे पास, एक्स वाई जेड, ठीक है, कॉमा जे के एल, ये रिमेनिंग एलिमेंट्स है, इनके कैपिटलाइजेशन साथ ये मर्ज होगा, ठीक है, तो यहां से मर्ज होके, ये ब्लैंक एरे से स्टार्ट हुआ था, देखो ब्लैंक एरे से ये भी स्टार्ट हुआ था, इसमें पी क्यू आर पुश हुआ है, ठीक है, एंड उसमें जब ये मर्ज होगा तो दिस विल इफेक्टिवली बिकम, इंस्टेड ऑफ ब्लैंक एरे एक एलिमेंट था, एक एलिमेंट के साथ दो एलिमेंट और मर्ज हो जाएंगे, फाइनली यहां से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो पी क्यू आर कॉमा एक्स वाई जेड कॉमा जे के एल, ये निकल कर आएगा फाइनली यहाँ से, और ये निकल के आएगा कैसे, ये यहाँ से निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा यहाँ से, और ये इसमें एबीसी में जाकर मर्ज होगा और वो फाइनल रिजल्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है, बट ये निकल के आएगा कैसे यहाँ से, तो ये निकल के ऐसे आएगा कि ये वाला फर्दर प्रोसेस होगा, फर्दर कैसे प्रोसेस होगा, तो इसमें एक्स वाई जेड करके एक एरे निकलेगा, फर्स्ट एलिमेंट निकलेगा इसका, प्रोसेस हो जाएगा, ठीक, और उसमें क्या जुड़ेगा, उसमें क्या कॉन्कैट होगा, तो उसमें कॉन्कैट होगा कैपिटलाइजेशन ऑफ जे के एल, ये कॉन्कैट हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें कॉन्कैट होना है, ठीक, और ये कैसे बनेगा, ये कैसे बनेगा, तो ये ऐसे बनेगा भाई कि दिस विल बिकम, ये फर्दर अगेन ब्लैंक एरे से स्टार्ट होगा, ठीक है, उसमें JKL प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है, JKL प्रोसेस हो क्या बन जाएगा, JKL बन जाएगा, ठीक है, एल बन जाएगा, ठीक है, ये बन जाएगा, ठीक है, और इसके साथ क्या जुड़ेगा, इट विल व्हाट विल कॉन्कैट विद फर्स्ट एलिमेंट हटा के, फर्स्ट एलिमेंट हटा के क्या बचता है, फर्स्ट एलिमेंट हटा के बचता है कैपिटलाइजेशन ऑफ ब्लैंक एरे, ब्लैंक एरे ये बचता है कैपिटलाइजेशन, ठीक है, और ब्लैंक एरे के केस में हमने देख रखा है कि भाई जब कुछ नहीं बच रहा हो कैपिटलाइज करने को, तो व्हाट डू यू रिटर्न, यू जस्ट रिटर्न अ ब्लैंक एरे, यानी इसकी जगह पे व्हाट विल कम अप, ये बेस केस हमारा ब्लैंक एरे आ जाएगा, और फाइनली अब मर्जिंग चालू होगा, ब्लैंक एरे प्लस जेकेएल विल बिकम जेकेएल, जेकेएल प्लस एक्सवाईजेड विल बिकम एक्सवाईजेड एंड जेकेएल, XYZ and JKL plus PQR will become PQR plus XYZ plus JKL, or this plus ABC will become the result, which is ABC plus PQR plus XYZ plus JKL, ये फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा, यही कोड में लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेस केस कि भाई एरे डॉट लेंथ जब 0 है तो ब्लैंक रिटर्न करना, और 0 नहीं है तो फर्स्ट वाला एलिमेंट कैसे एक्सेस करते हैं, एरे 0 करके एक्सेस करते हैं, फर्स्ट वाले एलिमेंट का को प्रोसेस करना, क्या प्रोसेस करना, तो फर्स्ट वाले एलिमेंट का फर्स्ट कैरेक्टर को अपर केस कर दो, और फर्स्ट वाले एलिमेंट के बाकी कैरेक्टर्स के साथ मर्ज कर दो, ठीक है, ये निकाल के आपको दे देगा, ऐसा कुछ बन जाएगा, और उसको पुश कर दो अपने एरे के अंदर, उसको पुश कर दो अपने एरे के अंदर, ठीक है, और इस एरे को मर्ज कर देना विद रिजल्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ द रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है, ये बोल रहा है, आई होप दिस इज क्लियर नाउ, क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन, ठीक है, आई विल नॉट बी रिपीटिंग दिस अगेन, ठीक है, I have repeated all the lines, ठीक है, all over again, so I hope this is clear, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ नहीं, एग्जिस्टिंग जो एरे बन रहा है आपके पास, ठीक है, यानी एक एलिमेंट है वो कॉन्कैट हो रहा है बाकी सारे एलिमेंट्स के कैपिटलाइजेशन के रिजल्ट के साथ, कैसे, तो भाई बाकी सारे एलिमेंट्स कैसे बनेंगे, एरे में से फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया, दैट्स इट, क्यों फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट प्रोसेस हो चुका है, तो बाकी फर्स्ट एलिमेंट डिलीट कर दिया, बाकी सबको पास कर दिया, बाकी रिमेनिंग एरे को किसमें, सेम फंक्शन में, कैपिटलाइजेशन फंक्शन में ही पास कर दिया, वहां से जो रिजल्ट आएगा उसको फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्दर मर्ज कर लेंगे या कॉन्कैट कर लेंगे, ठीक है, परफेक्ट है गाइस, लेट्स मूव, ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव विद अस, ठीक है, व्हिच इज, अब एक और क्वेश्चन मैं कवर करना चाहता हूं, व्हिच इज भाई, ठीक है, आई वांट टू कवर कि भाई हाउ विल यू, हाँ, I want what I want to cover right now is how to
रिवर्स रिवर्स सेंटेंस, ठीक, रिवर्स सेंटेंस वर्ड्स, ठीक है, ये है, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वेश्चन, मैं एक बार क्वेश्चन आपको समझा देता हूँ बिफोर diving deeper into this, ठीक। So the question is something like this, ठीक। Give me a second, let me copy the question from somewhere. I've already written it down somewhere actually. So this is the question, ठीक है, ये क्वेश्चन है अपना, ठीक है। रिवर्स ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इन गिवन मैनर, ठीक है। तो क्वेश्चन वेरी कॉमनली रिपीटेड, ध्यान रखिएगा इस चीज को, मैंने यहाँ पे अलग से लिखा है, ठीक है। क्या है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कंसेप्ट ऑफ द डे अगर स्ट्रिंग है तो आउटपुट शुड लुक लाइक दिस, कंसेप्ट इज रिवर्स्ड इन इट्स ओन प्लेस, CONCEPT, यही कंसेप्ट ही है, ठीक। ऑफ इज रिवर्स्ड एट इट्स ओन प्लेस, द इज रिवर्स्ड एट इट्स ओन प्लेस, डे इज रिवर्स्ड एट इट्स ओन प्लेस, ठीक। दोबारा देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, दे आर प्लेइंग अ गेम, ठीक है, इसका रिवर्स क्या होगा, रिवर्स सेंटेंस वर्ड्स, देखो देखो सेंटेंस क्वेश्चन देखो ध्यान से, ठीक है। रिवर्स ईच वर्ड ऑफ स्ट्रिंग इन गिवन मैनर, ठीक। तो क्या है, दे आर प्लेइंग अ गेम का रिवर्स क्या होगा, दे रिवर्स हो जाएगा YEHT, ये रहा रिवर्स हो गया, आर रिवर्स हो जाएगा ERA, ये रहा रिवर्स हो गया, प्लेइंग रिवर्स हो जाएगा, दिख रहा है प्लेइंग जो भी है, ठीक है, ए रिवर्स हो जाएगा, ए रिवर्स होकर ए ही रहेगा, ठीक है, गेम रिवर्स हो जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है, ये इसका रिवर्स निकल जाएगा, ठीक। एक और मैं एग्जांपल दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है, व्हिच इज कि भाई हाय ऑल, इसका रिवर्स कैसा बनेगा, ठीक है, हाय हाय टू ऑल, ठीक है, लेट्स से ये सेंटेंस है, इसका सेंटेंस का रिवर्स क्या बनेगा, ठीक है। तो हाय रिवर्स होगा अपनी जगह पे यानी IH, ठीक है, टू रिवर्स होगा अपनी जगह पे यानी OT, ठीक है, और ऑल रिवर्स होगा अपनी जगह पे यानी LLA, ठीक है, ये बनेगा इसका रिवर्स, ठीक है। दिस इज नॉट द सेम एज, दिस इज नॉट द सेम एज कि आपने पूरे सेंटेंस को रिवर्स कर दिया, यानी आप इधर से पूरा उल्टा कर दिए तो ये निकल के आएगा LLA, ऑल रिवर्स हो गया, OTIH, ठीक है, ये आपको नहीं करना है, ठीक, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। मैं ये दिखा देता हूँ आपको कि आपको नहीं करना है, दिस इज समथिंग दैट यू डोंट हैव टू डू, ये नहीं करना है, दिस इज सॉरी, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं करना है, दिस इज राइट, ये करना है आपको। एक बार क्वेश्चन समझ लो, एक बार ट्राई टू अटेम्प्ट इट योर बाय योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू अ मिनट। लेट मी एक्सप्लेन टू यू, मैं आपको हिंट देता हूँ कैसे करोगे आप, ठीक है, देन दैट वुड मेक थिंग्स मच इजियर, ठीक है। तो हिंट ये है कि भाई व्हाट डू यू डू, इसकी आपको आता है कि भाई एक स्ट्रिंग ABCDEF, इसको रिवर्स कैसे करते हैं, दिस यू नो, ठीक है, ये हमने कवर करा हुआ है, ठीक है, वी नो हाउ टू रिवर्स समथिंग लाइक दिस, ठीक है, हाउ टू राइट F E T C
बी ए, ठीक है, ये कैसे रिवर्स करते हैं ये अपने को आता है, ठीक है। लेट्स से दिस इज अ फंक्शन एस या फंक्शन रिवर्स, ठीक है, डज दिस, ठीक है, फंक्शन रिवर्स ये करता है, लेट्स से, ठीक है, फंक्शन रिवर्स डज दिस, लेट्स से, ठीक है। तो व्हाट डू यू डू इसकी भाई, लेकिन अपने को पूरा सेंटेंस को कैसे रिवर्स करते हैं ये नहीं आता, वी डोंट नो हाउ टू रिवर्स एन एंटायर, अगर रिवर्स फंक्शन में सॉरी ये पूरा सेंटेंस डाल देंगे तो दिस इज व्हाट वी विल गेट, ठीक है, the entire letters everything will get reversed, all the characters will get reversed, but अपने को क्या रिवर्स करना है, अपने को रिवर्स करना है हर वर्ड को इन इट्स ओन प्लेस, इट्स ओन प्लेस रिवर्स करना है, ठीक है, यानी इसको रिवर्स करना है इन इट्स ओन प्लेस, यानी यहाँ पे आई एच करना है, ठीक है, इसको रिवर्स करना है इन इट्स ओन प्लेस, यानी यहाँ ओ टी करना है, और इसको रिवर्स करना है इन इट्स ओन प्लेस, यानी एल एल ए करना है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, ठीक। सो हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट इज दैट, देखो एक बड़ा फंक्शन लिख लो, फंक्शन टू सॉरी रिवर्स सेंटेंस वर्ड्स, ठीक है, ये आपने फंक्शन लिख लिया, ठीक है। व्हाट डज इट डू, इट की व्हाट डज इट डू, ये क्या करेगा, ठीक है, स्प्लिट द सेंटेंस बेस्ड ऑन स्पेस, यानी जहां जहां इसको स्पेस दिख रहा है स्पेस पे स्प्लिट कर देगा पूरे सेंटेंस को, तो व्हाट विल इट गिव, ठीक है, इट विल रिजल्ट इन एन एरे ऑफ वर्ड्स, ठीक है, हाई कॉमा टू कॉमा ऑल, array of words निकल जाएंगे आपके पास, ठीक है, एंड देन व्हाट यू डू इसकी लूप ओवर द array एंड रिवर्स ईच वर्ड, ठीक है, रिवर्स ईच वर्ड यूजिंग व्हाट, ठीक है, रिवर्स ईच, देन हम क्या करेंगे, नीचे लिख देता हूँ क्या करेंगे, ठीक, लूप ओवर रिवर्स ईच वर्ड यूजिंग द रिवर्स फंक्शन, ठीक है, रिवर्स फंक्शन कहां से आएगा, रिवर्स फंक्शन ये रहा ऊपर लिखा था। सो नाउ वी लूप ओवर ईच वर्ड, ठीक है, हाई को रिवर्स किया, ठीक है, किससे, रिवर्स फंक्शन में एक ऑब्वियसली यहाँ पे वर्ड एक या जो भी है, ठीक है, डब्ल्यू या वर्ड करके एक ये इनपुट लेता होगा, ठीक है, इसको भेजा एक, पहले हाई को रिवर्स करके इसने दे दिया, ठीक है, फिर टू भेजा हमने उसको रिवर्स कर दिया, फिर ऑल भेजा हमने फिर उसको रिवर्स कर दिया, और हम इसको कॉन्कैट करते रहे, ठीक है, एंड कीप कॉन्कैटिंग with next words एंड बीच में स्पेस लगा दिया, एंड स्पेस, ठीक है, अभी के लिए मैं इसको इग्नोर करता हूँ, ठीक है, बट जो भी है बीच में एक स्पेस भी लगाएंगे आप, ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व इट, ठीक है, टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व इट, क्विकली लिखो, बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन है, ठीक है, ये हम पहले देख चुके हैं, ये मैं दिखा दिया आपको, ठीक है, क्विकली करिए आप लोग, ठीक है। We can definitely split string into an array, we have done it in the past, पहले हम लोग कई सारे असाइनमेंट्स में 1.5-2 महीने पहले से ये करते आ रहे हैं, ठीक है, नथिंग न्यू, इफ यू डोंट इफ नॉट अवेयर, ठीक है, आप भूल चुके हैं, आप गूगल कर लीजिए, मिल जाएगा आपको बहुत कुछ।
ठीक है, फेयरली सिंपल प्रॉब्लम है, ठीक है। आई होप कि मतलब यू आर एबल टू अटेम्प्ट दिस, ठीक, कुछ आपको ठीक है, वेर वेर भी ठीक है, तो हम कर रहे थे what we were reversing the, मैं हमने basically I had covered the logic behind it, ठीक, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, I don't think it is anything complex, ठीक। तो fairly सिंपल है। सबसे पहले हम जो है रिवर्स फंक्शन लिख लेते हैं, फंक्शन टू रिवर्स, ठीक है, फंक्शन रिवर्स लिख लेते हैं, ठीक है। वाई, क्योंकि रिवर्स फंक्शन को एक एक करके बेसिकली वी विल स्प्लिट दिस एंटायर सेंटेंस इनटू मल्टीपल वर्ड्स, और एक एक करके वर्ड्स भेजेंगे रिवर्स फंक्शन के अंदर, ठीक है। तो हमने फंक्शन रिवर्स फंक्शन लिख लिया, ठीक है। It will accept a string, ठीक है, something like this, ठीक है, string it accept करेगा। What will it do? What will it do? It will reverse it, ठीक है, it will reverse the string, ठीक है। Basically function to reverse any word, ठीक है, that's it, ठीक है, ये काम करता है ये, ठीक, फंक्शन, ठीक है, ये हमने फंक्शन लिख लिया है, ठीक है। हाउ डज इट वर्क, ठीक है, तो बहुत सिंपल सा है, ठीक है, ये हम पहले भी लिख चुके हैं, ठीक है। बट इधर वेज व्हाट वी विल डू राइट नाउ, ठीक, रिटर्न, यहाँ से करेंगे क्या, हम रिटर्न करेंगे कि भाई अगर कोई वर्ड आता है इसके पास, जैसे रिवर्स एनी वर्ड लाइक, ठीक है, अगर मान लो कि हाई आता है इसके पास, या फिर ऑल आता है, ऐसा वर्ड आता है, तो व्हाट वी विल डू इसकी, वी विल डू दिस, ठीक है, वी विल से कि भाई ए को उठाया और लास्ट में ऐड करना है किसके, विल हैव टू ऐड दिस टू दी, रिवर्स ऑल आया हुआ है, तो व्हाट वी हैव टू डू, इसके ए को निकाल देंगे, फर्स्ट एलिमेंट को निकाल देंगे और उसको ऐड कर देंगे रिवर्सल ऑफ एल एल के लास्ट में, ठीक है, लास्ट में ऐड कर देंगे, ठीक है। रिवर्स ऑफ ऑल की जगह पे लेट्स से एन ही होता है, ठीक है, तो व्हाट वी विल डू इज कि एन वाई को रिवर्स करेंगे बाद में, और उसके यानी रिवर्स का मतलब क्या है, ए को लास्ट में आना चाहिए, फिर एन को आना चाहिए, फिर वाई को आना चाहिए, ठीक है। तो ए को ऐड कर देंगे लास्ट में किसके, रिवर्सल ऑफ एन वाई के, ठीक है। बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज रिटर्न रिवर्स ऑफ व्हाट str डॉट स्लाइस वन, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को स्लाइस करके हटा दिया, ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कहाँ किया, फर्स्ट एलिमेंट को ऐड कर दिया एंड में, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ये है, ठीक है। और एक बेस केस सेट कर लेंगे, ठीक है, बेस केस सेट कर लेंगे, अगर इफ बेस केस क्या है, जीरो पे सेट कर लेते हैं, वन एलिमेंट पे सेट कर लेते हैं, ठीक है, str डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, देन क्या है, रिटर्न व्हाट, रिटर्न कुछ नहीं, ब्लैंक रिटर्न कर रहा है, दिस इज व्हाट योर रिवर्स फंक्शन डज, ठीक है। बेस केस सेट कर लिया हमने जीरो पर, ठीक है, रिवर्स करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, एनीथिंग को रिवर्स कर लेते हैं, ठीक है, या हेलो को रिवर्स कर लेते हैं, हम पहले भी हेलो को रिवर्स करने की ट्राई कर चुके हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई बस हेलो, ये फंक्शन पहले भी लिख चुके हैं, ये रहा रिवर्स होके आ गया, ठीक, बहुत बढ़िया, ठीक है, या मतलब जो भी है, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि आप इफ द स्ट्रिंग लेंथ इज लेस देन इक्वल टू 1, अगर 1 का बेस केस बनाना है तो 1 का भी बेस केस बना सकते हैं, तो आप क्या करोगे, स्ट्रिंग को ही रिटर्न करोगे, तब भी काम करेगा ये, ठीक है, तब भी काम करेगा, देखो रिवर्सिंग ऑफ देयर, ठीक है, हेलो देयर की जगह देयर पे रिवर्स करते हैं, ठीक, ये रहा है, ठीक, जैसा आपको बेस केस बनाना है आप बेस केस बना लो, डजंट मैटर, ठीक है, हम बेस केस जीरो पे ही छोड़ देंगे, ठीक है, आई लीव द बेस केस एट जीरो, ठीक है, ऑसम, ये रिवर्स फंक्शन हमारा काम कर रहा है, परफेक्ट, एज एक्सपेक्टेड, आई विल नॉट रिपीट इट अगेन, व्हाई, क्योंकि पहले कर चुके हैं, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। नाउ व्हाट डू वी डू, इसकी अब हमारे पास पूरा सेंटेंस आ रहा है, हाई टू ऑल पूरा सेंटेंस आ रहा है, और इसके एक एक वर्ड को रिवर्स करना है इन प्लेस, ठीक है, तो व्हाट डू यू डू, वी राइट अ फंक्शन, ठीक है, फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन नाम कुछ भी देते हैं, ठीक है, रिवर्स सेंटेंस वर्ड्स, ठीक, ये हमने रेव सेंटेंस वर्ड्स, ठीक, ये हमने दे दिया, ठीक है, और इसमें हम सेंटेंस को एक्सपेक्ट करेंगे एज एन इनपुट, ठीक है, एंड वी विल स्टार्ट रिवर्सिंग इट, कैसे रिवर्स कर रहे हैं भाई, हम देख चुके हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई रिवर्स कैसे करना होता है, रिवर्स कैसे करना होता है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज कि भाई स्प्लिट दी
स्प्लिट दी सेंटेंस इनटू वर्ड्स। ठीक है, क्या पे स्प्लिट करेंगे, स्प्लिट क्या पे करेंगे, हम देख चुके हैं इस चीज को। ठीक है, कि भाई वी विल सबसे पहले स्प्लिट द सेंटेंस बेस्ड ऑन स्पेस। ठीक है, हाई टू ऑल को स्प्लिट कर देंगे हाई टू ऑल में। ठीक है, यानी एरे बना लेंगे। ठीक, तो स्प्लिट बेस्ड ऑन स्पेस बार। ठीक है, स्प्लिट बेस्ड ऑन स्पेस बार के लिए क्या करेंगे, स्प्लिट के अंदर स्पेस बार डाल देंगे। यहाँ पे एक स्पेस है, ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेस बार भी है लगा हुआ है। ठीक है, इफ यू सी। ठीक, अरे भाई ये क्यों आ रहा है, ये रेड रेड क्यों दिख रहा है, फंक्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है। ठीक है, हमने स्प्लिट कर लिया। द फर्स्ट स्टेप वाज स्प्लिट द सेंटेंस बेस्ड ऑन स्पेस। ठीक है, हमारे पास ऐसा एक एरे आ गया है। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करके देखें ऐसा आ रहा है कि नहीं, आ गया है। ठीक है, लेट्स सी। ठीक है, फिर भी हम करके देख लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग वर्ड्स को प्रिंट कर लेते हैं। ठीक है, एंड वी विल कॉल दिस फंक्शन ref सेंटेंस वर्ड्स पे ये फंक्शन है कॉल, सॉरी ये फंक्शन कॉल कर लेंगे। देखिए जरा हो रहा है क्या, बिल्कुल हो रहा है, स्प्लिट हो गया वर्ड्स में। ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, स्प्लिट कर लिया वर्ड्स में, फर्स्ट स्टेप इज डन। ठीक है, सेकंड स्टेप पे आते हैं, लूप ओवर द एरे एंड रिवर्स ईच वर्ड यूजिंग रिवर्स फंक्शन एंड कीप कॉन्कैटिंग नेक्स्ट वर्ड। ठीक है, तो लूप करना है एरे के ऊपर। ठीक है, देन व्हाट डू वी डू इज कि भाई हम बोलेंगे कि भाई फॉर लूप लगा लेते हैं। ठीक है, i इज इक्वल टू 0 से लेकर कहां तक। ठीक है, i इज लेस देन, इस एरे के ऊपर लूप करना है अपने को। यू हैव टू लूप ओवर दिस एरे। ये एरे क्या है, ये स्प्लिट है, ये वर्ड्स सारे स्प्लिट हो गए हैं। तो विल से कि i इज लेस देन वर्ड्स डॉट लेंथ। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है, i प्लस प्लस, ये हमने लूप बना लिया। ठीक है, एंड व्हाट डू वी डू इनसाइड द लूप, हम लूप के अंदर हर वर्ड को रिवर्स कर देंगे। ठीक है, तो विल से कि भाई वर्ड्स को रिवर्स करना है अपने को। ठीक है, तो हमने बोला कि भाई इस वर्ड को हाई की जगह पे वी हैव टू रिवर्स दिस वर्ड, एंड इसी एरे में इसकी जगह पे ना, लेट्स से की जगह, इसकी जगह पे यहाँ पे व्हाट वी हैव टू क्रिएट इज वी हैव टू क्रिएट हाई की जगह पे वी हैव टू क्रिएट IH, टू की जगह पे वी हैव टू क्रिएट OT एंड ऑल की जगह पे वी हैव टू क्रिएट LLA। ठीक है, ये अपने को क्रिएट करना है। ठीक है, दिस इज व्हाट यू वांट, यानी अभी हमारे पास ये वाला एरे है, हाई टू ऑल एरे है, इसकी जगह पे हमें चाहिए IH OT एंड LLA वाला एरे। ठीक है, ये वाला एरे चाहिए। ठीक है, तो हाई को रिप्लेस कर देते हैं विच IH। ठीक है, यानी इसी एलिमेंट की जगह पे वी विल व्हाट वी विल डू इसकी इसी एरे में इसी एलिमेंट की जगह पे व्हाट वी विल डू इसकी वी विल गेट द रिवर्स ऑफ द दिस एलिमेंट। रिवर्स ऑफ दिस एलिमेंट कहां से आएगा हमारे पास, रिवर्स फंक्शन कॉल कर देंगे इस वर्ड के ऊपर, विल कॉल द रिवर्स एलिमेंट ओवर दिस वर्ड, विल कॉल द रिवर्स एलिमेंट ओवर दिस वर्ड। देखो यहां तक ठीक लग रही बात। इससे क्या होगा कि ये वाला एलिमेंट जो जहां पे हाई था वर्ड्स एरे के अंदर, जहां पे हाई था, यानी ये वाला जो हाई था, इसकी जगह अब IH आ जाएगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। ठीक है, जहां पे 2 था उसकी जगह OT आ जाएगा। वी हैव डन दिस। समझ में आ रहा है क्या आपको, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ठीक है, सो नाउ वी हैव गॉट दिस एरे। ठीक है, ये एरे है हमारे पास, लेट्स से। ठीक है, हमने बोला लेट्स से कि हमारे पास ये वाला एरे आ गया है। ठीक है, लेट इज इक्वल टू, ये एरे हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इस एरे को के सारे एलिमेंट्स को ज्वाइन करना है, बीच में स्पेस होना चाहिए इन सबके। ठीक है, यानी हमें बेसिकली वी हैव टू क्रिएट दिस। ठीक है, वी हैव टू क्रिएट हाई टू ऑल की जगह पे वी हैव टू क्रिएट IH स्पेस OT स्पेस ALL। ठीक है, देन व्हाट डू वी डू, हम देख चुके हैं एरे डॉट जॉइन फंक्शन, हम देख चुके हैं एरे डॉट जॉइन, और बीच में स्पेस होना चाहिए इनका। ठीक है, तो बीच में हमने स्पेस दे दिया, तो हमने स्पेस दे दिया बीच में। ठीक है, तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। हाई टू ऑल का रिवर्स, वर्ड वाइज रिवर्स यही है, अगर आप देखोगे तो IH OT LLA, यही तो है रिवर्स। ठीक है, so basically what do we have to return is that we have to say भाई जो ये वर्ड्स का एरे है, अब नया वाला जो एरे है, ठीक है, उसको ज्वाइन कर दो। ठीक है, वो विल से कि वर्ड्स के एरे को ज्वाइन करो ऑन व्हाट, ज्वाइन करो बीच में स्पेस लगा देना सबका। ठीक है, दिस व्हाट वी हैव टू डू। एक बार मैं रन कर देता हूँ इस फंक्शन को, देखो रन कर देता हूँ। अरे
क्या हुआ, लेट यहाँ पे डालना भूल गया, एक बार रन कर देता हूँ, सॉरी, रन कर दिया इस फंक्शन को, हाई टू ऑल का रिवर्सल आ गया, वर्ड वाइज रिवर्सल आपके पास रिजल्ट में आ गया। ठीक, क्विकली देखो इस बार यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, इसको एंड फेयरली सिंपल है, ये आपसे हो जाना चाहिए ना, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, ठीक है, पर देखिए एंड I'll explain this again, but एक मिनट लीजिए इसको समझने के लिए। ठीक है, आई बिलीव मतलब दिस इज डन, ठीक है, एंड मतलब दिस इज डन आई बिलीव, ठीक है। तो यार मतलब आई थिंक यहाँ पे ना व्हाट वी कुड हैव आल्सो डन इज ये वाला लॉजिक हम ना अंदर ही लिख सकते थे, ठीक है, यहाँ पे लिखने की जगह यहीं लिख सकते थे, बट दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है, मतलब आप करेंगे भी नहीं, ठीक है। टिपिकली व्हाट यू वांट टू डू इज you always want to separate logic into different functions. This is how you generally do programming, ठीक है, प्रोग्रामिंग में हमेशा ना लॉजिक को अलग अलग फंक्शंस ब्रेक करता है, तो एक एक वर्ड को रिवर्स करने के लिए आपने एक अलग फंक्शन लिख लिया और फिर वर्ड्स को स्प्लिट करके एक एक वर्ड को इस फंक्शन में पास करते जा रहे हो, ठीक है। दिस इज अ गुड प्रैक्टिस एंड दिस इज द राइट वे टू, करेक्ट वे टू, प्रॉपर वे टू राइट कोड आल्सो, ठीक है, मतलब फंक्शंस में छोटे छोटे फंक्शंस में ब्रेक करना है, रीयूजेबल फंक्शंस में ब्रेक करने का। एक बार फिर समझा देता हूँ टोटल प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करा हमने, ठीक है, विच इज कि भाई कि भाई कैसे कर, अच्छा बाय द वे यहाँ पे हम इटरेट कर रहे हैं एक एक वर्ड के ऊपर, ठीक है, मतलब डजंट मैटर, ठीक है, आप चाहो तो इटरेट करने की जगह यहाँ पे इसको भी आप रिकर्शन से लिख सकते हैं, बट विल नॉट गो इनटू इट, ठीक है। The core logic was to be able to reverse entire sentence, ठीक है, आप चाहो तो इसको भी आप, you can try writing recursion for this also, fairly simple to do। पिछला जो स्टेटमेंट क्वेश्चन हमने देखा था ऐसे ही बन जाएगा, ठीक है, एक एरे में आप कलेक्ट करते चलोगे और एरे को कॉन्कैट करते रहोगे विद द रिमेनिंग एलिमेंट्स के जो भी चीजें हैं, ठीक है, रिमेनिंग एलिमेंट्स के जो भी
रिवर्सल्स हैं, रिमेनिंग वर्ड्स के जो भी रिवर्सल्स हैं उनसे, ठीक है। फेयरली सिंपल टू डू, पहले भी हम कर चुके हैं, ठीक है। बट हाँ राइट नाउ इसके ऊपर हमने लूप लगा लिया, ठीक है। मैं दो दो अगर यहाँ पे रिकर्शन लिखूंगा तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए एक ही लिखा हुआ। बट इसको आप रिकर्शन से कर सकते हैं, आपको पता है, ठीक है, कि भाई एक एक आपके पास एरे आ गया स्प्लिट करने के बाद, तो उसमें से फिर आपको रिवर्स्ड एरे चाहिए, तो आप उसको कैसे कलेक्ट करते हैं, ठीक है, आपको पता है। जैसे एक आपके पास एरे था और इसमें से आपको एरे विद फर्स्ट लेटर कैपिटलाइज चाहिए था, तो आप उसको रिकर्शन से कैसे करते हैं, इनोड, ठीक है। तो सिमिलरली एक एक एलिमेंट को प्रोसेस करके कलेक्ट करते चले जाएंगे। फॉर लूप की जगह कुछ और भी आप रिकर्शन भी लिख सकते हैं, बट आई विल नॉट गो इनटू इट अभी, ठीक। बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। एक बार फिर से समझा देता हूं मैंने हमने क्या करा है, ठीक है। वी हैड अ सेंटेंस, लेट्स से हाई टू ऑल, एक हमारे पास सेंटेंस था, ठीक है। व्हाट वी हैड टू डू इज कि फर्स्ट वी स्प्लिट इट इनटू थ्री वर्ड्स बेस्ड ऑन स्पेस, स्पेस जहां भी स्पेस है वहां हम वर्ड को स्प्लिट करते गए। तो हमने मल्टीपल वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया, एरे ऑफ वर्ड्स में स्प्लिट कर दिया। फिर हमने एक एक वर्ड को रिवर्स किया है इन इट्स प्लेस, ठीक है। यानी यहां से नेक्स्ट स्टेप क्या बनता है, नेक्स्ट स्टेप ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है, कि नेक्स्ट स्टेप इज, यहां से मैं कॉपी कर लेता हूं, तो शॉर्टकट कर देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग, ये क्या कॉपी हो गया। Next step is something like this, comma, बेसिकली हमारे पास एरे ऑफ वर्ड था, ठीक है। हमारे पास एक सेंटेंस था, सेंटेंस को हमने कन्वर्ट किया, मैं यहाँ पे ना पूरा समरी लिख देता हूँ, नीचे स्टेप बाय स्टेप समरी भी लिखता कलेक्ट करता जा रहा हूँ। सेंटेंस को हमने स्प्लिट किया एरे ऑफ वर्ड्स में, उसको हमने चेंज किया, वर्ड्स को रिवर्स कर दिया इन इट्स ओन प्लेस, यानी हाई की जगह पे आईएच कर दिया, सेम ही एरे में, ठीक है। एंड देन क्या किया हमने, इनको ज्वाइन कर दिया, ठीक है। वी जस्ट joined it all, ठीक है, and converted it back into a sentence। हमने इन सबको ज्वाइन करके वापस स्पेस बार बीच में छोड़ते हुए ज्वाइन कर लिया और वापस सेंटेंस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो कैसे करा हमने, तो ये रहा भाई, वर्ड्स को स्प्लिट करा, सेंटेंस को स्प्लिट करा, ये एरे बन गया, ठीक है। फिर हमने एक एक वर्ड को रिवर्स करा, ठीक है, उन इट्स ओन प्लेस। हमने बोला कि करंट वर्ड इज इक्वल टू रिवर्सल ऑफ द करंट वर्ड, ठीक है। यानी हाई इज इक्वल टू, इसकी जगह पे क्या होना चाहिए, रिवर्सल ऑफ हाई, यानी आईएच बन गया, ठीक है। टू की जगह पे क्या हमने लिखा, इसी का रिवर्सल यानी ओटी, ठीक है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो ये हमारे पास एरे आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, इस पूरे एरे को यानी वर्ड्स के एरे को ज्वाइन कर दिया विद अ स्पेस बार इन बिटवीन, एंड द रिजल्ट, एंड वी गॉट द रिजल्ट। अब एक एक वर्ड को रिवर्स कैसे करते हैं, तो उसका सिंपल सा पता है, मैं कल परसों तरसों लास्ट 2-3 दिन में भी कभी ना कभी हमने ये कवर करा है प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे करते हैं, स्ट्रेंथ बेस केस बनाते हैं, अगर लेंथ 0 है तो वही ब्लैंक रिटर्न करते हैं, वरना क्या करते हैं, फर्स्ट कैरेक्टर को उठाया और एंड में जोड़ दिया किसके, हमने रिमेनिंग कैरेक्टर्स के रिवर्सल के में जोड़ दिया, ठीक। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। लेट्स move to the next question now. Take 30 seconds here. I hope this is clear to all, ठीक है ना, सबको क्लियर हो गया, ठीक है। एंड दिस गाइस, लेट मी टेल यू, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। फॉरगेट अबाउट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑल दोस थिंग्स, बहुत सारी चीजें यूज हो रही हैं, एरे फंक्शंस हो रहे हैं, बहुत सारी स्प्लिट हो रहा है, ये इस टाइप की चीजों में कोई टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। हाँ मतलब एंड व्हाट कैन हैपन इज कि हाँ, यू कैन डेफिनेटली यूज, अगर आपने एक रिकर्शन यूज किया तो आप दूसरी जगह फॉर लूप यूज कर सकते हो। रिकर्शन अगर आप एक जगह यूज कर ही रहे हो तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और अगर कोई बोल ही दे, द इंटरव्यूअर माइट आस्क यू कि भाई, माइट वैसे तो होगा नहीं, ठीक है, कि भाई इसको भी रिकर्शन से करो, तो नहीं नो कि भाई रिकर्शन से कैसे वर्ड्स ऐड करते हैं एक एरे में, ठीक है। बट कोई नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है। बट बिलीव मी गाइस, ये क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में आने की प्रोबेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई। एवरी 1 out of 2 इंटरव्यूज में आपका या तो वर्ड रिवर्स करो, यानी या तो ये क्वेश्चन, या तो पूरे पूरे सेंटेंस के सारे एक एक वर्ड्स को उनकी अपनी जगह पे रिवर्स करो। हर 1 out of 2 इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा यार, अगर डीएसएल को पूछा जा रहा है आपसे तो, ठीक है। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आई बिलीव एवरीथिंग इज क्लियर एंड कूल है, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लेट्स
move ahead, ठीक है, let's get to the next question that we have at hand, ठीक है. But before getting to next question, I wanted to read up something called map, ठीक है. Map in JS, ठीक है. I wanted to read this up, ठीक है. Map versus object, ठीक है, versus object in JS, ठीक है. ये आप एक बार पढ़िए, ठीक है. Map versus object in JS, ये आप एक बार लिंक को पढ़िए, ठीक है. I wanted to read this in JavaScript, ठीक है. Read this link once, ठीक है. Quickly take 2 minutes to read this, and then we will cover the next question quickly. You can also come to this MDN link. MDN का जो लिंक है मैप का, और इसको भी देख सकते हैं. तो क्विकली एक बार 2 मिनट के लिए मैप देखिए. मैप पहले भी कवर हो चुका है एक बार, बहुत पहले कवर हुआ था. आई एम नॉट श्योर आपको ध्यान भी है कि नहीं, बट हाँ मैप पहले कवर हो चुका है. नहीं ध्यान है तो एक बार जल्दी से क्विकली 2-3 मिनट में रिवाइज कर लीजिए, एंड विल कवर द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा मैथ्स तो अभी, तो व्हाट यू मस्ट हैव रियलाइज्ड, लेट्स गेट बैक क्विकली गाइस हियर, ठीक है. इसकी मैप्स आर नथिंग बट ऑब्जेक्ट्स ओनली, ठीक है. ऑब्जेक्ट्स ही होते हैं मैप्स, ठीक है. मतलब ये मैप है, ठीक है, कि भाई ABC की वैल्यू ये, ठीक है, एंड XYZ की वैल्यू ये. मतलब दिस कैन बी, ये मैप भी है, ये ऑब्जेक्ट होता है. मैप पे ऐसे ही दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही दिखता है, ठीक है. मैप्स एंड ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वेरी डिफरेंट, ठीक है. बट 2-3 की डिफरेंसेस है मैप्स एंड ऑब्जेक्ट्स में, ठीक है. वन इज की ऑब्जेक्ट में टिपिकली जो कीज होते थे ना, वो आपके स्ट्रिंग्स होते थे, ठीक है. मैप में की कुछ भी हो सकता है, एक नंबर भी हो सकता है, एक नंबर भी आपका की हो सकता है, ठीक है. वैसे ऑब्जेक्ट में भी आपने देखे होंगे नंबर की होते हो, ठीक है. बट जैसे ऑब्जेक्ट में आप ऑब्जेक्ट डॉट कीज करके या जो भी करके, जैसे भी करके गेट कीज करके ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जब आप कीज मंगाते हैं ऑब्जेक्ट के, तो आपको कलेक्शन में ये आता है, ठीक है, 1,2 ऐसा कुछ करके आएगा, ठीक है. यानी ये जो की आपने 1 डाली होगी और 2 डाली होगी, इनको वो स्ट्रिंग की तरह रीड करता है, ठीक है. यानी ऑब्जेक्ट में कीज आर स्ट्रिंग्स टिपिकली, जबकि मैप में अगर आप जब मैप की कीज आप निकालोगे, ठीक है, मैप की कीज आप जब निकालोगे, तो इट विल कम डाउन एज 1,2 ऐसा निकल के आएगा, ठीक है. यानी टिपिकली व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई मैप वर्सेस ऑब्जेक्ट में दोनों सेम ही है, मैप ऑब्जेक्ट मोटामोटी सेम ही है, ठीक है. फर्स्ट इज मैप कैन हैव एनीथिंग एज की, ठीक है. यानी नंबर्स भी हो सकते हैं, वैसे तो नंबर्स आपके उसमें भी हो सकते हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट में भी हो सकते हैं, बट ऑब्जेक्ट उनको स्ट्रिंग्स में खुद ही कन्वर्ट कर देता है, ठीक है. मतलब ये जो की है ना, ये जो की है ना, ये नंबर भी हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रिंग भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है, नंबर्स, या फिर एरे भी हो सकता है. ये की भी जो है ना, ये की आल्सो कैन बी एन एरे, ठीक है. एरे ऑफ 12, ठीक है, 1, 2, 3 ऐसा टाइप का एरे भी हो सकता है. यानी अ की कैन बी एन एरे आल्सो, ठीक है, मैप में, ठीक है.
एरे भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, एक्सेट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज नॉट पॉसिबल इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये की जो है ये अपने आप में एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। ए इज इक्वल टू हाई, ये भी हो सकता है, ठीक है। दिस इज अ की, ये भी हो सकता है। दिस इज ओनली पॉसिबल इन मैप, दिस इज नॉट पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट बाय द वे, ठीक। द सेकंड डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ऑब्जेक्ट इज कि मैप की, मैं मैप की सारी स्पेशल प्रॉपर्टीज गिना रहा हूं आपको, ठीक है। वी आर काउंटिंग द स्पेशल प्रॉपर्टीज ऑफ मैप, ठीक है। ठीक है, मैप कैन हैव एनीथिंग एज की, ठीक है, वन, ठीक है। द सेकंड डिफरेंस बिटवीन मैप एंड ऑब्जेक्ट इज दैट कि भाई मैप का लेंथ निकालना ना, मैप का साइज, ठीक है, लेंथ या साइज जो भी बोलना, ठीक है, लेंथ और साइज, ठीक है, साइज, it is easy to get the length और size of a map, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, तो ये रहा, देखो आप कर रही, ये लिंक आपने खोल के देखा भी होगा ना, तो यहाँ पे दिखा रहा है आपको, ठीक है, कि भाई मैप डॉट साइज करो, ये साइज प्रॉपर्टी है, ये फटाक से आपको साइज दे देता है, ठीक है। आपका साइज निकालना है, यानी लेंथ निकालना है, यानी मान लो कितने कीज हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपका is equal to this, अगर ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो ऑब्जेक्ट का साइज निकालने के लिए, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, ये निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि ये इनके सारे कीज निकालो, एक एरे में डालो, ठीक है, एक एरे में डालो, इसके सारे कीज निकाल के एक एरे में डालो, फिर एरे का लेंथ, ठीक है। ये होता है ऑब्जेक्ट के साथ। मैप के साथ कैसे होगा, मैप के साथ कुछ नहीं है, मैप डॉट साइज कर दोगे आप, मैप डॉट साइज कर दोगे, आपको साइज मिल जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया, ठीक है। इट इज इजी टू गेट द लेंथ ऑफ द और द साइज ऑफ अ मैप, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको, ठीक है, हाउ टू गेट लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो देखोगे बहुत कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, कि भाई आप पहले कीज निकालते हो सारे, ठीक है, फिर उसका लेंथ निकालते हो, कीज से एरे एक बन जाता है, ठीक है, फिर आप उसका लेंथ निकालते हो, ठीक है। दिस इज द वे टू गेट लेंथ ऑफ, या मतलब साइज ऑफ एन जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैप में बस मैप डॉट साइज करा आपका हो गया, ठीक है, मैप डॉट साइज करते ही हो जाता है आपका, ठीक है। मैप डॉट साइज फंक्शन है, ठीक है, दैट्स इट, ठीक है। थर्ड एंड द मोर इंपॉर्टेंट वन इज कि भाई जो ये ऑर्डर है ना, ए है और बी है, ठीक है, आपने ऐसे ऑर्डर में मान लो कि बनाया है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। ऑब्जेक्ट का ना ये ऑर्डर मेंटेन नहीं रहता है। मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको, ठीक है, आपको शायद दिखा पाऊँ ना दिखा पाऊँ मुझे पता नहीं, ठीक है, बट लेट्स ट्राई, स्टिल लेट्स ट्राई, ठीक है। लेट var obj is equal to, अरे अच्छा सॉरी, अभी तो मेंटेन्ड है, ठीक है, बट लेट्स से फिर और बड़ा करते जाते हैं, obj डॉट c is equal to something something, लेट्स से, ठीक है। तो ये जो ऑर्डरिंग आपको दिख रही है ना, कि पहले ए आ रहा है, पहले फिर बी आ रहा है, फिर सी आ रहा है, ठीक, ये ऑर्डरिंग ना ऑब्जेक्ट में हमेशा मेंटेन नहीं रहती है। किसी किसी केस में ना आपको जरूरी नहीं है कि ऑर्डरिंग मिले, किसी किसी केस में ना आपको ये ऑर्डरिंग जो है मिलती नहीं है, ठीक है। यानी दिस ऑर्डरिंग इज नॉट मेंटेन टिपिकली इन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। ऑब्जेक्ट डॉट f इज इक्वल टू 1 2 3, अरे क्या हो गया यार, f इज इक्वल टू 1 2 3, ऑब्जेक्ट डॉट p इज इक्वल टू 1 2 3। मैं आपको एग्जांपल शायद ना दिखा पाऊँ, ठीक है, दिख गया, ठीक है, नहीं दिख रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑब्जेक्ट कुछ लिख लेते हैं, दिख रहा है आपको, ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं हुई। आपने जैसे ही कोई और एलिमेंट डाला इसमें, तो देखो आपने लास्ट में इसको एंटर किया था, बट ये देखो फर्स्ट में दिख रहा है आपको, ठीक है, दिख रहा है आपको, ऑर्डरिंग मेंटेन नहीं हुई, ठीक है। तो ये ऑर्डरिंग ना मेंटेन नहीं हो पाती है ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। दिस इज द प्रॉब्लम विद ऑब्जेक्ट, ठीक है। अनप्रेडिक्टेबल है, देयर इज एक्चुअली, व्हाई इट इज अनप्रेडिक्टेबल, क्योंकि एक्चुअली ना इंटरनली जो ऑब्जेक्ट से बना उसमें कोई ऑर्डरिंग है ही नहीं,
वो अनऑर्डर्ड सेव्ड है, ठीक है। अनऑर्डर्ड यानी मतलब कोई ऑर्डर नहीं है, पहले 12 आएगा कि फिर ए आएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, ये ऑर्डर नहीं है, ठीक है। यू कांट डिटरमाइन द ऑर्डरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। यानी थर्ड थिंग दैट वी आर राइटिंग इज कि भाई ऑर्डर ऑफ कीज इन इन ऑब्जेक्ट इज नॉट मेंटेन्ड, ठीक है। while मैप में ऑर्डर ऑफ कीज इज फिक्स्ड, ठीक है। फिक्स्ड होता है ऑर्डर ऑफ कीज, ठीक है। अगर ऑर्डर ऑफ कीज फिक्स्ड है तो पता है आपको, आप ध्यान दोगे तो ऑर्डर ऑफ कीज फिक्स क्यों कर, फिक्स होने से एक फायदा होता है कि आप ना इटरेट बहुत इजीली कर सकते हो, प्रेडिक्टेबल इटरेशन होता है, ठीक है। यानी जब आप इटरेट कर रहे हो, यानी फॉर लूप लगा रहे हो या कुछ लूप लगा रहे हो, तो यू नो कि भाई लूप में पहला एलिमेंट आप कौन सा एनकाउंटर करोगे, दूसरा एलिमेंट कौन सा एनकाउंटर करोगे, तीसरा एलिमेंट कौन सा एनकाउंटर करोगे, ठीक है। हेंस इट इज बेटर या मतलब या प्रेडिक्टेबल टू यूज फॉर ऑफ लूप, ठीक है। और एनी इटरेशन फॉर दैट, मतलब ये, ठीक है, ऑन अ मैप, ठीक है। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। फॉर ऑफ ये लूप होता है ना, ठीक है, इसको मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। ये यूज करना या कोई भी लूप इन जनरल यूज करना ना मैप के ऊपर रिलेटिवली इजी होता है। ये तीन की डिफरेंसेस है मैप्स और एरेज, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ भाई कि भाई कीज के नाम कुछ भी हो सकते हैं मैप में, स्ट्रिंग होना जरूरी है, नंबर भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक। कीज की ऑर्डरिंग मेंटेन रहती है, हेंस इस पर लूप लगाया जाता है, फॉर ऑफ लूप वगैरह मेंटेन लगाया जाता है। कीज की ऑर्डरिंग ऑब्जेक्ट में मेंटेन नहीं रहती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और सेकेंडली कि भाई मैप का साइज निकाला है, मैप का लेंथ निकाला है, कितनी कीज है वो पॉसिबल है, जो ऑब्जेक्ट के साथ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इसके आप नोट्स ले लेंगे, ठीक है। why I'm explaining maps is that I want you to focus on this question next is which is भाई मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। I want you to focus on this question which is count the number of duplicates, count the number count the या print, let's say print the duplicates in an array, ठीक है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। एग्जांपल देता हूँ आपको, ठीक है, कि भाई अगर हमारा एरे है 23,3,2,1,2, ये है, ठीक है, कॉमा प्लस से ये इतना ही है, ठीक है। तो भाई इसका आउटपुट क्या आएगा, 2 आएगा केवल, ठीक है। यानी ओनली 2 इज रिपीटेड, ठीक है। 2 दो बार रिपीट हो रहा है, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। 2 आएगा, ठीक है। मान लो यहाँ पे 2 की जगह 3 होता तो 3 आता, 3 इज रिपीटेड ट्वाइस, ठीक है। बट मान लो कि और बड़ा आ रहा है, 3 भी रिपीट हो रहा है और 1 भी रिपीट हो रहा है, ऐसे, ठीक है। तो क्या आता आपको, 3 आता फिर 1 आता, ठीक है। सो यू हैव टू प्रिंट द एलिमेंट दैट आर रिपीटेड, ठीक है। प्रिंट द डुप्लीकेट्स इन एन एरे, ठीक है। जो 3 डुप्लीकेटेड है 2 बार आ रहा है, ठीक है, और 1 भी 2 बार आ रहा है, ठीक है। इसको आपको प्रिंट करना है, ठीक है। डुप्लीकेट्स को आपको प्रिंट करना है, ठीक है। कैसे करोगे आपको दिमाग लगाना है, ठीक है। मैं आपको एक हिंट देके जाता हूँ, ठीक है। हिंट एंड आई विल गिव यू 2 मिनट्स, ठीक है। कि भाई क्रिएट अ हैश मैप, ठीक है। हैश मैप पहले हम ऑब्जेक्ट से क्रिएट करते थे, इस बार आप हैश मैप मैप से क्रिएट करोगे, ठीक है। मैं क्या समराइज करा, ठीक है, लास्ट 2-3 मिनट्स में व्हाट यू हैव कवर्ड इज कि भाई मैप वर्सेस ऑब्जेक्ट्स हमने कवर कर लिया है, ठीक है। वी हैव कवर्ड मैप वर्सेस ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। देन वी आर कवरिंग दिस क्वेश्चन, ठीक है, व्हिच इज कि भाई हाउ टू प्रिंट द डुप्लीकेट्स इन एन अरे, ठीक है। आई वांट यू टू फोकस ऑन दीस राइट नाउ, ठीक है। टेक द नेक्स्ट 1-2 मिनट्स टू अंडरस्टैंड मैप वर्सेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, मैप होता क्या है, एंड देन टैकल दिस क्वेश्चन दैट वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू, ठीक है। डुप्लीकेट्स निकालने हैं आपको एक एरे के अंदर, ठीक है। आई होप यू विल बी एबल टू डू दिस। या से अंदर मिनट 1-2 मिनट है आपके पास टू टेक अ शॉट एट दिस। बाय द वे गाइस, दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं बिलीव में आई एम टेलिंग यू कि भाई जो पिछला क्वेश्चन मैं करा और ये क्वेश्चन जो करा, आपके हर इंटरव्यू में मैं मतलब हर दूसरे इंटरव्यू में इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इतना कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है ये।
ठीक है गाइस, सो आई विल कवर दिस प्रॉब्लम नाउ। ठीक है, फेयरली सिंपल ही है। ठीक है, अगेन कोई बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, व्हाट वी विल डू इज कि भाई लेट्स से हमारे पास हम व्हाट वी विल डू इज कि मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ यहाँ पे। इसका बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा इस चीज को। डुप्लीकेट्स, डुप्लीकेट डुप्लीकेट्स। ठीक, व्हाट वी डू इज ये क्वेश्चन है वैसे पहले एक एरे में डुप्लीकेट्स कितने को काउंट करने हैं, प्रिंट करने हैं। व्हाट वी विल डू इज वी विल क्रिएट अ हैश मैप। हैश मैप बनाएंगे हम कि भाई कि कौन सा एलिमेंट कितनी बार ये करता है। सबसे पहले 23 कितनी बार एग्जिस्ट करता है, वन टाइम्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखेंगे 3 कितने टाइम्स एग्जिस्ट करता है, अगेन वन टाइम्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, फिर हम देखेंगे कि ये क्या हुआ। ठीक है, फिर अच्छा सॉरी इज इक्वल टू समथिंग लाइक दिस। ठीक है, अब फिर हम देखेंगे 3 कितनी बार एग्जिस्ट करता है, वन टाइम्स एग्जिस्ट करता है। फिर देखेंगे 2 कितनी टाइम्स एग्जिस्ट करता है, वन टाइम्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखेंगे कि भाई 1 कितने टाइम्स एग्जिस्ट करता है, वन टाइम्स एग्जिस्ट करता है। फिर हम देखेंगे 3 फिर से आ गया 3। ठीक है, 3 में हमने क्या किया, 1 की जगह 1 प्लस प्लस कर दिया, 2 कर दिया। ठीक है, नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर। फिर 1 आ गया दोबारा। ठीक है, तो 1 आ गया दोबारा, तो 1 को हमने क्या किया, 1 के अकरेंसेस 1 से बढ़ा के 2 कर दिया। ठीक है, एंड दिस हैश मैप गॉट क्रिएटेड। ठीक है, एक बार ये हैश मैप बन गया, then what we do is कि भाई we say कि भाई iterate कर लेंगे इसके ऊपर हम। we will for loop we will let's say loop over all elements of A and return where value is value return sorry loop over all keys of A and return where value is greater than 1। ठीक है, 1 से बड़ा जहां भी निकल गया तो उसको हम रिटर्न करते जाएंगे या फिर कलेक्ट करते रहेंगे। एंड रिटर्न की जगह कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट वेरेवर कलेक्ट कहां करेंगे, एरे में कलेक्ट करेंगे वेरेवर वैल्यू इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, दिस अप्रोच इज क्लियर, फेयरली सिंपल है। ठीक है, दिस हैज नथिंग टू डू विद रिकर्शन। ठीक है, ये एक पुराना हमारा फ्रीक्वेंसी काउंटिंग मेथड है, उसके बेसिस पे क्वेश्चन लेकर आया है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि भाई ऐसा थोड़ा है कि आपको बता कर आएगा कि भाई क्वेश्चन रिकर्शन क्या है, फ्रीक्वेंसी काउंटिंग क्या है। ठीक है, and also मतलब I wanted to be fresh on all the concepts। आई बिलीव मैं फिर से बता देता हूँ। ठीक है, ये एरे है हमारा। ठीक है, एक एक करके एलिमेंट चेक करते रहेंगे, उनकी फ्रीक्वेंसी नोट करते रहेंगे। 23 कितनी बार अपीयर कर रहा है, वन टाइम्स अपीयर कर रहा है। 3 कितनी बार अपीयर कर रहा है, अभी के लिए वन टाइम्स अपीयर कर रहा है। 2 कितनी बार अपीयर कर रहा है, वन टाइम्स अपीयर कर रहा है। 1 कितनी बार अपीयर कर रहा है, अगेन वन टाइम्स अपीयर कर रहा है। फिर 3 कितनी बार, क्या फ्रीक्वेंसी है 3 की, तो फिर 3 दोबारा आ गया। 3 को हमने चेक किया, ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था, हाँ करता था, दोबारा आया तो एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी उसकी। 1 की फ्रीक्वेंसी भी एक बढ़ानी है तो वन टाइम्स ऑलरेडी था, एक फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी, 2 टाइम्स हो गया। फिर हमने क्या किया, इस पूरे के ऊपर लूप करेंगे और जहां जहां फ्रीक्वेंसी यानी वैल्यूज या फ्रीक्वेंसीज 1 से ज्यादा है, अगर वैल्यू बोल दें या फ्रीक्वेंसी बोल लो। ठीक है, या फ्रीक्वेंसी। ठीक है, 1 से ज्यादा है उनको हम कलेक्ट करते हैं क्या है। सो हाउ डू यू डू दिस, एक फंक्शन लिख लेते हैं हम। ठीक है, राइट अ फंक्शन ऑफ डुप्लीकेट्स। ठीक है, डुप्लीकेट्स फंक्शन हमने लिख लिया। ठीक है, व्हाट विल इट डू, इट विल टेक एन एरे एज इनपुट। ठीक है, इट विल टेक एन एरे एज इनपुट and what it will do, it will create a map over this array। अब ये मैप हमें क्रिएट करना है इस एरे के ऊपर, फ्रीक्वेंसी काउंट करके ये मैप क्रिएट करना है इस एरे के ऊपर। ठीक है, हाउ विल यू डू दिस, हाउ विल यू डू दिस, तो मैप कैसे क्रिएट करते हैं भाई, लेट लेट हम नाम दे देते हैं। ठीक है, फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसीज लिख देते हैं इसका। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, एक मैप, नया पहले मैप आप डिफाइन करते हैं, ब्लैंक मैप। हाँ सॉरी गाइस, तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग इज कि भाई हम लोग हाँ हमने एक मैप बनाना है, मैप में फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट करनी है। ठीक है, तो हमने फ्रीक्वेंसीज डिफाइन किया है, लेट फ्रीक्वेंसीज इक्वल टू न्यू मैप, ऐसे ही मैप बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को आप समझ लीजिए। ठीक, देन व्हाट वी डू इज कि हम लूप करेंगे इस पूरे एरे के ऊपर, इस पूरे एरे के ऊपर लूप करेंगे और उनकी फ्रीक्वेंसीज जो है, उनके एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज जो है
फ्रीक्वेंसीज करके एक मैप में कलेक्ट करते चलेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है। फॉर लेट आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस प्लस, ठीक है, और आई प्लस प्लस, सॉरी, आई इज लेस देन array डॉट लेंथ। अब फॉर ईच ये वो 50 चीजें आप यूज कर सकते हैं, मैं सिंपल फॉर लूप यूज कर रहा हूँ सो दैट इजियर रहे समझने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक। हमने लूप करा इस एरे के ऊपर पूरे, चेक करेंगे अब, ठीक है, कि भाई इफ मैप डॉट मैप के में चेक करेंगे कि भाई 23 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता। कैसे चेक करते हैं, ठीक, तो हम चेक करते हैं ऐसे कि भाई क्या मैप डॉट गेट में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, जस्ट अ सेकंड, ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, ये चेक करेंगे, ठीक। मैप डॉट गेट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, हाँ एग्जिस्ट करता है तो, अगर नहीं करता है तो अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। तो नहीं करता है क्या एग्जिस्ट, अगर नहीं करता एग्जिस्ट देन वी विल set map dot set the frequency of this element as 1, ठीक है, that's ठीक, ये सिंपल। इसको देखिए एक बार क्या लिखा है, फिर else वाली कंडीशन कवर करेंगे। ठीक है, आई बिलीव आपको समझ में आ गया कैसे मैप के दो फंक्शंस थे, मैंने दोनों लिख दिए हैं, मैप डॉट गेट और मैप डॉट सेट, एंड आई गिव यू अनदर मिनट टू टेक अ लुक एट इट। व्हाट इट इज डूइंग कि मैप नया हमने क्रिएट कर लिया और हम चेक कर रहे हैं कि भाई मैप में ये एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं एग्जिस्ट करता। अगर मैप डॉट गेट हमने एरे का फर्स्ट एलिमेंट उठाया, ठीक है, यानी 23 को उठाया, ठीक है, और हमने बोला कि भाई मैप में क्या ये 23 की एग्जिस्ट करती है क्या, 23 की अगर नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे कि भाई 23 का की बनाएंगे, ठीक है, और उसकी वैल्यू यानी उसकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देंगे एज 1, ठीक है। तो सेट कैसे करते हैं, मैप डॉट सेट की कॉमा वैल्यू, ये हो गया, ठीक है। और चेक कैसे करते हैं की एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, तो मैप डॉट गेट की चेक करते हैं, ठीक है। अगर वो अनडिफाइंड आ गया देन दैट मींस कि भाई मैप में की नहीं एग्जिस्ट करती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, ठीक। नाउ व्हाट वी डू, इसके एल्स लगा लेते हैं कि मान लो कि मैप में की अनडिफाइंड नहीं आके कुछ वैल्यू आ जाती है यहाँ पे, यानी एग्जिस्ट करती है, तो ऑल दैट वी हैव टू डू इज कि मैप डॉट सेट, यानी मान लो यहाँ पहुंचते हैं कि 3 पे पहुंचे हम, ठीक है, और हमने देखा कि 3 की वैल्यू एग्जिस्ट करती है ऑलरेडी एज 1, ठीक है, यानी अनडिफाइंड नहीं है। मैप डॉट गेट हमने 3 करा तो अनडिफाइंड नहीं है, 3 की एग्जिस्ट करता है ऑलरेडी, उसकी वैल्यू है 1। देन व्हाट डू वी डू, इसकी विल से कि भाई मैप डॉट सेट क्या, एरे आई की वैल्यू को बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है भाई, तो एरे आई की वैल्यू को क्या बढ़ा देना है, तो एरे आई की वैल्यू निकालनी है पहले, मैप डॉट गेट करके एरे आई की वैल्यू निकालनी है पहले, ठीक है, और उसको +1 कर देना है, +1 कर देना है। दिस इज ऑल वी हैव टू डू।
आई थिंक दिस इज द एंटायर प्रोग्राम, यू गाइस यू शुड टेक अ लुक एट इट। अभी हम रिजल्ट कलेक्ट करना चालू करेंगे। फर्स्ट पार्ट इज डन, व्हिच इज कि भाई लूपिंग ओवर ऑल द कीज एंड कलेक्टिंग द फ्रीक्वेंसीज। नाउ दैट दिस इज डन, ठीक है, मतलब हमने क्या करा है भाई, हमने मैप में फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट कर ली, ठीक है, फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट कर ली। मैं एक बार कंसोल डॉट लॉग करके दिखा भी देता हूँ आपको। फ्रीक्वेंसीज का मैप कंसोल डॉट लॉग करके हम देख भी लेते हैं। दिख जाएगा या आई एम नॉट श्योर कि दिखेगा नहीं दिखेगा, बट एक बार मैं दिखा देता हूँ। मैप इज नॉट डिफाइंड, क्या लिख रहा है if map sorry map dot get गलत लिख दिया मैंने, वेरिएबल का नाम गलत लिख दिया है, फ्रीक्वेंसीज है वेरिएबल का नाम, फ्रीक्वेंसीज वेरिएबल का नाम फ्रीक्वेंसीज है, फ्रीक्वेंसीज है। देखिए तो मैप बन गया है। 23 एलिमेंट कितनी बार है, एक बार है। 3 एलिमेंट कितनी बार, 2 बार है। 2 एलिमेंट कितनी बार, एक बार है। 1 एलिमेंट कितनी बार है, 2 बार है, ठीक है। ये मैप बन गया है, ठीक है। दिस मैप इज क्रिएटेड नाउ, ठीक है। नाउ द सेकंड स्टेप इज लूप ओवर ऑल द आइटम्स, to loop over all the items and collect the so sorry I don't know how I got muted, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज कि भाई फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सारी कलेक्ट हो गई हैं, आप देख सकते हो, ठीक है। फ्रीक्वेंसीज हमारे पास सारी कलेक्ट हो गई हैं, सारे एलिमेंट की फ्रीक्वेंसीज कलेक्ट हो गई हैं। 23 एक बार अपीयर करता है, 3 दो बार अपीयर करता है, 2 वन टाइम्स अपीयर करता है, 1 2 टाइम्स अपीयर करता है। Now what we have to do is that we have to loop over all the elements, we have to loop over all the elements। और मैप के ऊपर लूप हम कैसे करते हैं, ऑफ फॉर ऑफ से लूप कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो we have to loop over all the elements of map, ठीक है, for let sorry keys of map, ठीक है। some sorry just a second ठीक है। एक्चुअली व्हेन यू लूप ओवर मैप ना, तो मैप से ना आप जब लूप करते हैं, मैप के ऊपर फॉर ऑफ करते हैं, देन यू गेट दिस, आपको ये मिलता है, ठीक है। 23,1 मिलता है फर्स्ट एलिमेंट मैप पे जब आप फॉर ऑफ करते हैं तो, और सेकंड एलिमेंट मिलता है आपको 3, ऐसे खुद से क्यों हो रहा है यार, 3,1 मिलता है सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट मिलता है आपको 2,1, फोर्थ एलिमेंट मिलता है आपको 1,2, ठीक है। यानी मैप के ऊपर जब आप फॉर लूप ऑफ फॉर ऑफ लगाते हैं तो ये पूरा एलिमेंट एक एक की तरह आता है, ठीक है। यानी व्हाट यू गेट इज इफेक्टिवली इज पेयर, ठीक है। फॉर लेट पेयर्स ऑफ मैप, ठीक है, फॉर ऑफ लगा रहे हैं मैप के ऊपर, ठीक है। देन व्हाट वी से इसकी भाई हम चेक करते हैं कि इसकी वैल्यू, ठीक है, वैल्यू कहाँ पे, ये की है, ये वैल्यू है, ठीक है ना, ये की है, ये वैल्यू है। तो फॉर if value यानी if map if pairs का जो फर्स्ट एलिमेंट है, if it is greater than 1, मतलब कि अगर वैल्यू, अगर फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है तो डुप्लीकेट है, ठीक है। तो डुप्लीकेट है तो व्हाट डू वी डू इज कि भाई वी कलेक्ट डुप्लीकेट्स हियर, ठीक है। लेट res इज इक्वल टू ब्लैंक एरे हमने बना लिया, वी विल से कि res डॉट पुश, इसमें हम डुप्लीकेट्स कलेक्ट करेंगे। पुश व्हाट, वी वांट टू पुश द की, ठीक है। तो की कहाँ पे है, की इज
पूरा पेयर आया हुआ है हमारे पास की और वैल्यू का, तो भाई की इज द 0th एलिमेंट, ठीक है, रेस्ट डॉट पुश, ठीक है। फाइनली हम यहाँ से वी विल रिटर्न द रिजल्ट, ठीक, दिस इज व्हाट वी विल डू, ठीक। हाँ, मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन इट ऑल ओवर अगेन, ठीक है। अगेन मैप लिखते हैं, ये ठीक है, 3 और 1 आ गए आपके एलिमेंट्स जो रिपीट हुए, 3 दो बार है, 1 भी दो बार है, ठीक। मैं एक बार क्विकली फिर से समझा देता हूँ एंड देन आई विल लीव दिस प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू यू, ठीक है। भाई मैप में हम 3-4 फंक्शंस देखा हमने पहले कि मैप डॉट गेट क्या करता है, उस की वैल्यू दे देता है, ठीक है। मैप डॉट सेट क्या करता है, एक की और वैल्यू पेयर एंट्री कर देता है, ठीक है। या फिर मैप डॉट अगेन मैप डॉट सेट क्या करता है, फ्रेंसिस डॉट सेट क्या कर रहा है, एक की है और उसकी वैल्यू ये कर दे रहा है, वैल्यू क्या कर दे रहा है, पुरानी वैल्यू +1 ये कर दे रहा है, ठीक है, ठीक है। जब फॉर ऑफ लूप लगाते हैं मैप के ऊपर तो क्या होता है कि आपको की वैल्यू पेयर देता है, ऐसे की कॉमा वैल्यू ऐसे पेयर देता है आपको, की कॉमा वैल्यू ऐसे पेयर देता है, ठीक है। तो 0th एलिमेंट जो पेयर का होता है वो की होता है और फर्स्ट एलिमेंट जो हर पेयर का होता है वो वैल्यू होती है उसकी, ठीक है। तो ये फंक्शन है मैप के जो यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। मैं क्विकली अब आपको समझा देता हूँ ये पूरा फंक्शन फिर से, ठीक है, पूरा क्या लिखा हुआ है। तो हमें डुप्लीकेट्स निकालने थे इस एरे के ऊपर, यानी वो एलिमेंट्स निकालना था जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे। तो व्हाट वी डिड इज वी क्रिएटेड अ मैप ऑफ दिस एलिमेंट ऑफ दिस एरे, ठीक है, कि भाई ये एलिमेंट कितनी बार है, ये एलिमेंट कितनी बार है, ये एलिमेंट कितनी बार है, सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। तो व्हाट वी डिड इज कि भाई लेट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू न्यू मैप क्रिएट किया हमने, ठीक है। एंड वी सेड कि भाई नया मैप क्रिएट किया हमने, ठीक है। हमने बोला कि इस एरे के ऊपर पूरा इटरेट करो, इस एरे के ऊपर पूरा इटरेट करो, तो हमने इस एरे के ऊपर इटरेट किया, ठीक है। फिर हम चेक किया कि भाई इस एरे में क्या ये फर्स्ट एलिमेंट, एरे का फर्स्ट एलिमेंट ith एलिमेंट क्या ये एग्जिस्ट करता है क्या इस मैप के अंदर। अभी तो ब्लैंक मैप है, तो ब्लैंक के मैप के अंदर फर्स्ट एलिमेंट एग्जिस्ट करता है क्या, नहीं करता। यानी अगर ये नहीं करता, अनडिफाइंड अगर ये नहीं करता, तो भाई ये सेट कर दो, क्या सेट कर दो, ये एलिमेंट और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेट कर दो। अगर नहीं करता मतलब अब तक नहीं दिखा है, ठीक है, तो इसकी इस एलिमेंट को उठा लो और उसकी फ्रीक्वेंसी 1 सेट कर दो। ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है। एल्स अगर ये की एग्जिस्ट करती है, अगर हमें मिल गई है की, तो ये एल्स में आ जाएगा। एल्स में क्या कर रहे हैं, की और उसकी वैल्यू हम क्या सेट कर रहे हैं, पुरानी फ्रीक्वेंसी +1। यानी अगर ये दोबारा इनकाउंटर हो गया तो हमने देखा 3 की पहले एग्जिस्ट करता था, हाँ करता था, तो पुराना वैल्यू उसका देखा 1 था, हमने पुरानी वैल्यू निकाली उसकी और उसमें 1 जोड़ दिया, तो पुराना वैल्यू 1 था उसमें 1 और जोड़ दिया, ये 2 बन गया, ठीक। तो ये हमने सेट कर दिया दोबारा। ऐसे करके पूरा हैश मैप बन गया पूरे एरे के ऊपर लूप करके। सिंपल है, ठीक। हमने हैश मैप को प्रिंट भी कर लिया है, ठीक है। देन व्हाट वी डू, इसकी भाई हम एक ब्लैंक एरे बनाएंगे, इसमें हम कलेक्ट करेंगे उन कीज को जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है। कैसे कलेक्ट करेंगे, तो हम भाई मैप के ऊपर फॉर ऑफ लगा के इटरेट करेंगे मैप के ऊपर। बहुत बढ़िया, इटरेट करते हैं। हमने बोला एक एक पेयर निकाल रहे हैं मैप से, अगर पेयर में 0th एलिमेंट क्या होता है, 0th एलिमेंट इज द की, पेयर का फर्स्ट एलिमेंट इज द वैल्यू। तो हमने बोला कि पेयर का फर्स्ट एलिमेंट यानी वैल्यू 1 से ज्यादा है, यहाँ पे 1 से ज्यादा है क्या, पेयर का फर्स्ट एलिमेंट का ये पेयर के वैल्यू, ठीक है, नहीं 1 से ज्यादा नहीं, 1 से ज्यादा नहीं तो कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। अगले पे इटरेट करके अगले पेयर पे पहुंच गए, तो अगला पेयर ये आया हमारे पास, इसका फर्स्ट एलिमेंट 0th इंडेक्स और फर्स्ट इंडेक्स ये है, 0th इंडेक्स ये है, फर्स्ट इंडेक्स ये है। फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है, वैल्यू पड़ी हुई है। अगर इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, 1 से ज्यादा है क्या इसकी वैल्यू, बिल्कुल 1 से ज्यादा है, तो क्या करो, रिजल्ट एरे जो ब्लैंक एरे था उसमें पुश कर देना ये एलिमेंट को, यानी की को। की कैसे निकालते हैं, तो पेयर के 0th इंडेक्स पे जो पड़ा है वो की पड़ा है, तो रिजल्टेंट यानी ब्लैंक एरे में इस की को पुश कर दो, ठीक हो गया। अब अगले पेयर पे आ गया, अगले पेयर पे चेक किया हमने, इसकी वैल्यू क्या है, 1 है, 1 से ज्यादा नहीं है क्या, 1 से ज्यादा नहीं है क्या, नहीं है, तो कुछ नहीं किया। इटरेट करके अगले पेयर पे आ गए, अगले पेयर पे चेक किया हमने, इसकी वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है क्या, बिल्कुल 1 से ज्यादा है, 2 है इसकी। तो हमने क्या किया, रिजल्ट एरे में इसके की को यानी 1 को पुश कर दिया, ठीक। और फाइनली जब ये लूप खत्म हुआ तो हमने रिजल्ट एरे को रिटर्न कर दिया, एंड दिस इज व्हाट वी गॉट इन रिटर्न, वी गॉट द एलिमेंट्स दैट आर रिपीटेड मोर देन वंस।
I hope this is clear. ठीक है. I have explained this and this is a very commonly asked question. ठीक है, ये आएगा, बहुत highly probable है ये आ जाए आपके इंटरव्यू में, बहुत ज्यादा चांसेस है इसके. ठीक है, and I hope you will now be able to crack this question if it comes up in your interviews. ठीक है. ठीक है. Take a minute to look at the solution. मैं थोड़ा सा कंसोल को छोटा कर देता हूँ so that you have more visibility on your screen. Take a minute to look at it. ठीक है guys, I think I hope this is clear. ठीक है, I don't think anyone would have any doubts anymore. ठीक है. ठीक है. I have repeated multiple times by now. ठीक, I hope this is clear now. ठीक है. ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है. ठीक है, ठीक है. आई थिंक एवरीथिंग इज क्लियर. ठीक है, यहाँ से एरे आ रहा है हमारा. ठीक है, यहाँ जा रहा है. ठीक है, ये फंक्शन कॉल हो रहा था और फिर एरे के हैश मैप बना रहे हैं. फिर हैश मैप के ऊपर पूरा इटरेट कर रहे हैं. इटरेट करके चेक कर रहे हैं कि जिस किसकी वैल्यू 1 से ज्यादा है, फ्रीक्वेंसी 1 से ज्यादा है, उसको इस ब्लैंक एरे में कलेक्ट करते जा रहे हैं और फिर रिटर्न कर. दिस इज व्हाट यू हैव डन. I'll wrap this session up. ठीक है, I hope you have taken notes also. I hope everything is perfectly clear. ठीक है, and awesome. ठीक है, बहुत commonly asked questions हमने बहुत सारे आज cover करे. ठीक है, and I hope you will be able to attack these questions in your interviews. भाई आप लोग अटकोगे नहीं. ठीक है, and मतलब ऐसे नाक नहीं कटाओगे. ठीक है, अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन आ गया तो ऐसा ना हो कि भाई आप जो है बेइज्जती करा के आ जाओ. ठीक है, you should be able to tackle these questions. I've spent more than sufficient enough time on these. ठीक है, तो हाँ, ठीक है, ठीक है, cool है guys. I'll wrap up the session here. ठीक है, it's already been a lengthy session. ठीक है, I'll wrap this session up here. ठीक है, and we'll meet again with an even more interesting session next time. Till then, I'll wrap this one up.